Hello students, in the last video we discussed about the chemical reactions of aldehydes and ketones with nucleophile. In this we studied the addition of hydrogen cyanide, addition of sodium bisulfate, addition of alcohols and addition of Grignard reagent with a nucleophilic addition, that is elimination of aldehyde and ketones with ammonia derivative. अमोनिया डेरिवेटिव्स में हमने 5 रिएक्शन स्टडी किए हैं। हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजीन के साथ फिनाइल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बाइजाइड, 2,4-DNP, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन. So along with this we studied the reaction of ketone with the ammonia derivative. So I told you to write the reactions. I hope you have written the reactions. And then haloform reaction also we studied. Now we'll study aldol condensation, cross aldol condensation. See, this reaction is very important reaction for aldehydes and ketones. So we'll study the aldol condensation. Aldehydes containing at least one alpha hydrogen atom undergo a reaction in presence of dilute alkali, that is dilute NaOH, KOH or sodium carbonate as a catalyst to form beta hydroxyaldehydes, that is aldol. This reaction is known as aldol reaction. Formation of aldol is an addition reaction. Aldol formed from aldehyde having alpha hydrogen undergoing subsequent elimination of water molecules on warming, giving rise to alpha beta unsaturated aldehyde. See, when aldol reaction is asked, you have to write the explanation about this. Explanation also carries 1 mark for this reaction. aldol condensation Cannizzaro reaction, इसका explanation जो है ये भी बहुत मायने रखता है, सो आपको लिखना है. देखो, aldol condensation means the aldehydes having at least one alpha hydrogen atom. Now alpha hydrogen atom means the carbonyl group is there. Carbonyl group means aldehyde और कीटोन की जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, वो कार्बन को छोड़ के उसके बाजू में जो कार्बन एटम है उसके साथ जो हाइड्रोजन है, that is called as alpha hydrogen atom. See, in below over here it is written, इथेनॉल लिखा है ना, वहाँ पे देखो कार्बन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड आफ्टर द नेक्स्ट adjacent कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन एटम. सो अल्फा हाइड्रो एटलीस्ट वन हाइड्रोजन शुड बी देयर, अल्फा हाइड्रोजन. सो this reaction will take place in the presence of dilute alkali, that is NaOH or KOH or sodium carbonate. ये reagent होना चाहिए. This reagent should be there. You have to write down on the arrow even in the explanation. So this अगर आपने सेंटेंस में भी लिखा है तो भी चलेगा, हाफ मार्क्स इसके लिए रहेगा और हाफ मार्क्स एक्सप्लेनेशन, ऐसे कंबाइन 1 मार्क. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज aldol कंडेंसेशन. ये क्या बनता है? प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी. तो बीटा के जगह पे with water it will give unsaturated alpha beta unsaturated aldehydes. मतलब एक अनसेचुरेशन वहाँ पे रहता है और aldehyde ग्रुप देता है. सो सी विल सी द रिएक्शन. देखो, 2 molecules of aldehydes will take in presence of aqueous NaOH. It will give 1 group of alcohol and 1 group of aldehyde. Aldehyde is as it is, but along with aldehyde we are having alcohol. So this is called as aldol. ald जो है वो aldehyde है और OL है वो alcohol का नाम है. So this aldol is warmed with water. This aldol, यहाँ तक aldol है, उसके बाद वार्म करते हैं वाटर से, तो क्या देता है? इट इज गिविंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde.
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे वाटर इलिमिनेट होता है, जैसे वाटर रिमूव हो रहा है यहाँ से OH और बाजू के कार्बन से हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. सो टू कंप्लीट द कार्बन वैलेंसी इट इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड. That's why one double bond is there and aldehyde group is there. So it is called as alpha beta unsaturated aldehyde. So reaction is given ethanol. दो ethanol लेना है. It is having alpha hydrogen atom. देखो इथेनॉल इथेनॉल अल्फा हाइड्रोजन एटम का सिंबल दिया है, अल्फा लिखा है, तो दैट कार्बन इज अल्फा कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. दे आर रिएक्ट विथ डाइल्यूट NaOH and they will give aldol. Aldol means over here addition will takes place. देखो एडिशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे CH3 of first methyl group is there और दूसरा जो है वहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, तो वो होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी. और उसके बाजू में दूसरा कार्बन एटम अटैच है, दैट इज अल्फा कार्बन, और उसके साथ है CHO, दैट इज aldehyde group. And after this addition compound it will lose water molecules. यहाँ से water eliminate हो रहा है. देखो first two ethanols are there. These two ethanols they will undergo the addition. First addition will take place. देखो addition होते समय CH3 वैसे ही है फर्स्ट इथेनॉल का. 2 नंबर का जो कार्बन एटम है वो है एक डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन वैसे ही है, ऑक्सीजन के साथ दूसरा इथेनॉल का एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहा है, सो दैट इज फॉर्मिंग हाइड्रोक्सी. बीटा बीटा पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे दूसरा कार्बन जो है वो लिंक हो रहा है. सो CH3 CH OH CH2 CHO, ये एडिशन कंपाउंड है, एडिशन हो रहा है दो इथेनॉल का, दैट इज कॉल्ड एज अल्डोल. एंड अल्डोल और उसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, बिकॉज हियर अल्डिहाइड ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड OH ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट. जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसके बाजू में कार्बन एटम है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन एटम, और अल्फा के बाजू में जो है वो बीटा है. सो अल्फा बीटा लिखा है वहाँ पे. So water molecule is losing means it is eliminating water molecules. देखो OH H लिखा है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो रहा है, उसकी जगह पे डबल बॉन्ड आता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH CHO. ये है हमारा कंपाउंड 2-ब्यूटेनॉल. इनल क्यों है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. इनल AL क्यों है, इट इज अल्डिहाइड ग्रुप. अंडरस्टूड. तो देखो पहले एडिशन होता है, एडिशन के बाद बस आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है और डबल बॉन्ड ऐड करना है, इतना ही करना है. और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, एन अल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज अ कैटलिस्ट, इट फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल. दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन. इतना लिखोगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन आपको रिएक्शन प्रॉपरली लिखना है. अंडरस्टूड. सो द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन. इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. देखो एडिशन एलिमिनेशन दोनों वर्ड यूज किया है, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप एडिशन विल टेक्स प्लेस एंड इन द सेकेंड स्टेप एलिमिनेशन will take place. So this we studied regarding with aldehyde. Now we'll see for ketone. Ketones containing at least 2 alpha hydrogen atom undergoes aldol condensation reaction and give an alpha beta unsaturated ketone. For example, propanol is a acetone. Propanol means acetone in presence of barium hydroxide. Over here also first step is addition will take place. दो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉन मतलब 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल्स है,
तो दोनों ऐड होते हैं, इस तरह से ऐड होते हैं कि आपको एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे H सेपरेट लिखना है, बिकॉज व्हेन यू विल रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल it is easy to put the double bond of between carbon carbon atom. So the adduct is formed, that is 4-hydroxy 4-methyl pentane 2-on, means it's a ketone, a ketol. Ketone with hydroxy group, it is called as ketol. Now we have to heat this compound to eliminate water molecules. So water molecule is eliminating and we have to insert the double bond to satisfy the carbon valency. So that is forming alpha beta unsaturated ketone. So name of the compound is 4-methyl pent 3-in. थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है, डबल बॉन्ड इन, और सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है. सो 4-methoxy pent 3-in 2-on और 2-1. ऐसे क्यों है? बिकॉज इट इज कीटोन इज देयर, कीटोनिक ग्रुप इज देयर, दैट्स वाई. सो दिस इज कॉल्ड एज कीटोल. अल्डोल कंडेंसेशन में अल्डोल है, अभी ये दिस इज अ कीटोल. Next is cross aldol condensation. Now in cross aldol condensation, this refers to aldol condensation that takes place in between two different aldehydes and or ketones. देखो, what is cross aldol condensation? It takes place between two different aldehydes और ketones. पहले हमने सेम लिया था, जैसे इथेनॉल लिया और एसिटोफिनॉल और एसीटोन लिया, तो दोनों सेम थे. अभी कैसे है, एक अल्डिहाइड में जो है वो डिफरेंट. Cross aldol condensation will takes place if both aldehydes or ketones containing 2 alpha hydrogen atom each, then a mixture of 4 product is formed. मिक्सचर कैसे मिलता है? 4 कंपाउंड मिलते हैं उसमें. फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल. इथेनॉल मीन्स एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल मीन्स प्रोपेनॉल्डिहाइड. On the reaction with dilute alkali followed by heating gives a mixture of 4 products. देखो, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, रिएक्शन नीचे दिया है फिगर 12.5 में. सी दिस रिएक्शन इज रिफर्स टू क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. एक इथेनॉल है और एक प्रोपेनॉल है, दोनों डिफरेंट है. कंडीशन इज डाइल्यूट अल्कली इज देयर, हीट इज देयर. फर्स्ट में है सेल्फ कंडेंसेशन. तो सेल्फ कंडेंसेशन कैसे हो रहा है? See, when they are forming self condensation, CH3 CH double bond of first ethanol is attached with carbon atom of second, that is propanol. वहाँ पे अटैच हो रहा है. देखो, CH3 CH ये फर्स्ट का है इथेनॉल, वहाँ से ऑक्सीजन निकाला है, ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे. सो ओवर देयर दूसरा जो प्रोपेनल है ना वो ऐड हो रहा है वहाँ पे. सो CHO डबल बॉन्ड H ये फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोटोनल्डिहाइड और इट इज 2-ब्यूटेनल. इट इज 2-ब्यूटेनल प्लस इसके साथ और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? CH3 CH2 CH double bond C CH3 CO double bond H. So it is 2-methyl pent 2-enol, pent 2-enol. So these two products are formed when it is undergoing self condensation. Now if it is undergoing cross aldol condensation, then here we are getting CH3 CH डबल बॉन्ड C और उसके साथ मिथाइल ग्रुप है CH3 और उसके बाजू में CO ग्रुप और H. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-methyl ब्यूट 2-enol. देखो, 2-methyl ब्यूट 2-enol. ऊपर पेंट बना था, अभी इधर इनल. सो नेक्स्ट कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, दोनों के साथ HH है और उसके बाद COH है. सो इट इज pent 2-enol. So these are the products of
cross aldol condensation. Next is ketone can be used as one of the component in cross aldol condensation. क्रॉस aldol condensation में एक कीटोन भी यूज कर सकते हैं. That is, so next is Cannizzarose reaction. This reaction is given only by aldehydes having no alpha hydrogen atom. Cannizzarose reaction means what? कि जहाँ पे no hydrogen atom, alpha hydrogen atom है. So it is formaldehyde. Formaldehyde में no alpha hydrogen. alpha hydrogen कब होता है? जब कार्बोनाइल ग्रुप के बाजू में कार्बन है और उसे हाइड्रोजन अटैच है, then it is alpha carbon atom. So in the formaldehyde only one CO group is there, no another carbon. So alpha carbon is absent. That's why alpha hydrogen concentrated alkali. This reaction is known as, or this is the example of disproportionation reaction. In Cannizzarose reaction, one molecule of an aldehyde is reduced to alcohol and at the same time second molecule is oxidized to carboxylic acid salt. For example, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, ये एग्जाम्पल है. तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखते हैं. फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ NaOH 50% NaOH लेना है. वी हैव टू हीट इट. सो फर्स्ट इट विल फॉर्म सोडियम फॉर्मेट, मतलब C is bonded with double E with oxygen and one hydrogen is attached and again it is having ONA. Oxygen is negative charge, sodium is positive charge. So sodium formate is formed along with methanol. Methanol is alcohol. So that reaction is called as Cannizzarose reaction for aldehyde which is having no alpha hydrogen atom. So example is formaldehyde और एक बेंजाल्डिहाइड है. बेंजाल्डिहाइड देखो, दो मॉलिक्यूल्स लेना है. बेंजाल्डिहाइड reacts with KOH in methyl alcohol. We have to heat it. So first it will form potassium benzoate and then it will give phenyl methanol और benzyl alcohol. तो ये कौन सा कंपाउंड देते हैं? दे आर गिविंग कार्बोक्सिलिक. इसमें पहले केस में मिथेनल अल्कोहल देते हैं, तो यहाँ पे भी हमें बेंजाइल अल्कोहल मिला है और एक डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट मिलता है हमें. ओके, सो दिस इज कैनिज़रोज रिएक्शन. कैनिज़रोज रिएक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज ओनली फॉर अल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम. सो एग्जांपल इज फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड. तो कौन से रिएक्शन किस कंडीशन पे और क्या कंडीशन है ये हमें पता होना चाहिए. अल्डोल कंडेंसेशन या फिर कैनिज़रोज रिएक्शन, इन दोनों में से एक तो क्वेश्चन आता ही है. सो बी प्रिपेयर बोथ द क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस कैनिज़रोज रिएक्शन. क्रॉस कैनिज़रोज रिएक्शन मीन्स, सी, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ formaldehyde and non-ionizable aldehyde. Ionizable aldehyde means aldehydes with no alpha hydrogen is treated with a strong base. Formaldehyde is oxidized to formic acid while other non-ionizable is reduced to alcohol. Formic acid forms sodium formate with NaOH. On acidification, sodium formate is converted into formic acid. For example, देखो क्रॉस कैनिज़रोज रिएक्शन कैसे है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा कैसे है? नॉन आयोनाइजेबल मीन्स इनाइजेबल, मतलब कि अल्डिहाइड में नो अल्फा हाइड्रोजन एटम. तो दोनों में भी नो अल्फा हाइड्रोजन एटम है. फॉर्मल्डिहाइड में भी नहीं है और बेंजाल्डिहाइड में भी नहीं है. सो इट इज़ ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जाम्पल NaOH. सो फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड. सो फॉर्मल्डिहाइड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है फॉर्मिक एसिड में. और दूसरा जो कंपाउंड है कि नॉन इनाइलाइजेबल, मतलब कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है. फॉर एग्जांपल बेंजाल्डिहाइड.
और दूसरा अल्डिहाइड है वो अल्कोहल में हो रहा है. सो फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स सोडियम फॉर्मेट with NaOH on acidification with sodium formate is converted into formic acid. So at the end we are getting formic acid from formaldehyde. और दूसरा अल्डिहाइड है उससे हम अल्कोहल मिलता है. फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया है देखो रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड is going to give formaldehyde plus benzaldehyde. They are giving formaldehyde is oxidized to formic acid or benzaldehyde is reduced to alcohol, that is phenyl methanol. So these reactions are very important. You will write the reaction and practice along with the explanation. ये 4 reactions आप अच्छे से करो. aldol condensation, क्रॉस aldol condensation, कैनिजरोज क्रॉस कैनिजरोज रिएक्शन. इसमें कंडीशन क्या है ये आपको याद रखना है. सी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वास्ट एंड हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. देयर इज नो अदर शॉर्टकट टू रिमेंबर द रिएक्शन, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस इट. बहुत सारे रिएक्शंस है कि आपको प्रैक्टिस ही करना है. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अभी हम इनके ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस देखते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स के. सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय डाइल्यूट HNO3 and KMNO4 and K2Cr2O7. See, aldehydes are oxidized to corresponding carboxylic acids by oxidants such as dilute nitric acid, potassium permanganate और सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम. तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है. हमने ऑक्सीडेशन में भी ये उनकी खासियत है. ऑक्सीडेशन देखो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो वो अल्डिहाइड बनेंगे, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड्स बनेंगे, अगर रिडक्शन होगा एसिड्स का तो अल्डिहाइड बनेंगे, अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेंगे. ऐसे इनका सीक्वेंस ही है. सो ऑक्सीडेशन हम देखते हैं अभी. अल्डिहाइड will oxidize in presence of potassium dichromate in presence of dilute H2SO4. देखो अल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. अभी कीटोन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग COC बॉन्ड, बट दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज CrO3, क्रोमिक एसिड, alkaline KMNO4 or hot concentrated HNO3. A mixture of carboxylic acids having less number of carbon atoms than the starting ketone. Thus, oxidation of ketones is accompanied by the breaking of CC bond. देखो कीटोन की क्या खासियत है, यहाँ पे जो बॉन्ड है CO बॉन्ड और कार्बन बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसकी वजह से वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है. बट it can be oxidized in presence of strong oxidizing agents such as CrO3, KMNO4, alkaline KMNO4 or hot concentrated HNO3. A mixture of carboxylic acid having less number of carbon atoms. लेकिन ये एक नंबर कार्बन का कम मिलता है. जैसे कीटोन स्टार्टिंग कंपाउंड 3 है तो हमें 2 का ही मिलेगा ऐसे. See the example. Ketones react with CrO3. It will give carboxylic acid. With CrO3, CH3COOH, that is acetic acid. अगर हमने 2-butene ऑन लिया, मतलब 5 मेंबर्ड कार्बन एटम है यहाँ पे, तो इट इज गोइंग टू गिव इथेनोइक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड. मिक्सचर मिलता है हमें यहाँ पे. So this is the oxidation of aldehydes and ketones. And next reaction is there. This reaction is called as reduction. Clemmensen and Wolff-Kishner reduction. अब ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे. पहले हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टडी किया है. The carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to methylene group, that is dash CH2 dash on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. This is called as Clemmensen
क्लेमेंसन रिडक्शन, इस स्टेप को क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं कि जहाँ पे हम जिंक अमलगम यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए और अल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होता है और मिथाइलिन ग्रुप मिलता है. So a hydrazine is followed by the heating with sodium or potassium hydroxide in a high boiling solvents like ethylene glycol. जब इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं तो वो वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं. जिंक अमलगम है तो क्लेमेंसन रिडक्शन. ओके, सो क्लेमेंसन पहले देखते हैं. जिंक अमलगम, अमलगम मीन्स इट इज़ बॉन्डेड विथ मर्क्यूरी. सो कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है. CO ग्रुप लिखा है मतलब ये कार्बोनाइल अल्डिहाइड या फिर कीटोन. +4 नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट हाइड्रोजन इज रिटन विथ स्क्वायर ब्रैकेट. इट इज हाईली रिएक्टिव in presence of zinc amalgam and concentrated HCl. We have to heat it and it is reduced to methylene group. Methylene CH2 dash dash plus water molecule. मतलब यहाँ पे अल्केन मिलता है. देखो एसीटोन रिएक्ट्स विथ जिंक अमलगम. क्लेमेंसन रिएक्शन है. क्यों क्लेमेंसन रिएक्शन है? इट डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट कंडीशन. रिएजेंट कंडीशन क्या है? इट इज जिंक अमलगम तो क्लेमेंसन. वुल्फ किश्नर है तो हाइड्रोजिन यूज़ करेंगे हम. तो देखो अभी एसीटोन इज रिड्यूस टू प्रोपेन. यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है CO के साथ बॉन्ड किया हुआ वो हाइड्रोजन के साथ चला जाता है एंड इट इज़ फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल एंड हियर विल गेट CH2 डैश डैश मीन्स मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं या फिर इट इज़ गिविंग अल्केन. प्रोपेन मिलता है. देखो हमें सैचुरेटेड अल्केन वी आर गेटिंग फ्रॉम क्लेमेंसन्स रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन हमें अल्केन मिलता है. सो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड हाउ विल ऑब्टेन अल्केन फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन. सो आपको इमीडिएटली ऐसे स्ट्राइक होना चाहिए ये क्लेमेंसन रिडक्शन है. से एवरी टाइम दे वोंट आस्क द डायरेक्ट क्वेश्चन. समटाइम्स दे आस्क हाउ द कन्वर्जन विल टेक्स प्लेस ऑफ हाउ विल गेट प्रोपेन फ्रॉम अल्डिहाइड दैट इज प्रोपेनल. ऐसे पूछ सकते हैं. तो देखो प्रोपेनल मीन्स इट इज 3 मेंबर्ड aldehydic group. 3 carbon atom aldehyde group is there plus 4 hydrogen in presence of zinc amalgam and concentrated HCl. It will give propane plus water molecule. Next reaction is Wolff-Kishner reaction. Hydrogen water molecule is minus, so it will give hydrozone. हाइड्रोजन क्या है? NH2 डैश NH2 वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल कार्बन सिंगल सिंगल कार्बन को डैश 2 डैश है और इट इज डबली बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन एंड अगेन दैट नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विथ अमाइन दैट इज हाइड्रोजोन. सो देखो अगेन KOH और glycol we have to use. So methylene group is obtained plus N2 sorry. So propanol is undergoing reduction in Wolff-Kishner reduction in presence of hydrogen. It will give C2H5 CH double bond N NH2 hydrozone. This hydrozone is again reduced to प्रोपेन प्लस N2. देखो प्रोपेनल से हमें प्रोपेन मिला. अभी कीटोन के स्टडी करते हैं. इथाइल मिथाइल कीटोन है. इथाइल फिनाइल कीटोन विल अंडरगो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन in presence of hydrazine. So it first forms hydrazone and then it will form N-propyl benzene plus N2. So these reactions you will write down in your notebook. See, Wolff-Kishner reduction is used to synthesize straight chain alkyl substituted benzene, which is not possible by Friedel-Crafts alkylation. So this is the limitation of Friedel-Crafts alkylation, but it is the benefit of Wolff-Kishner reaction. तो इसमें क्या है? हमें straight chain of alkyl substituted benzene मिलता है. जैसे
एन प्रोपाइल बेंजीन मिला, स्ट्रेट चेन मिलता है यहाँ पे. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ Wolff-Kishner reaction. Okay, so today's reactions you will write down in your notebook and you will practice it. So again and again I am telling you, you have to practice the reaction, otherwise you won't be able to write the reaction. तो पहले अल्डिहाइड हैलोजन डेरिवेटिव्स में कितने रिएक्शंस है वो आप लिख कर रखो. वही रिएक्शंस रिपीट भी होते हैं. फिर अल्डिहाइड कीटोन्स वो लिखना है आपको. अल्कोहल फिनॉल के भी रिएक्शंस याद करने हैं. सो 3 टॉपिक्स आर देयर इन विच सो मेनी रिएक्शंस आर देयर. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. ओके, सो प्रैक्टिस द रिएक्शंस. एंड उसमें भी अल्डोल कंडेंसेशन ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है. अल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़रोज रिएक्शन, और ये क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये भी रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है. पूछ सकते हैं, दे आर पॉपुलर रिएक्शंस, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और उसमें ऑक्सीडेशन का भी रिएक्शंस आप याद करो, क्योंकि ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, अल्डिहाइड से भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. लेकिन क्या कंडीशन है ये आपको याद होना चाहिए. सो यू विल write down the reactions in your notebook and every day you will read all the reactions. So practice it.